Good afternoon, students, and welcome to the online class of history. Myself, Ananya Bhattacharjee, and today I'll be discussing about how language was developed or how did spoken language emerge. So, mainly we will focus on how early humans used to talk. Actually, uh, they, uh, they, they don't have any language to speak. Okay, so let me start in a very simple way to make your points very clear. Okay, so see, first of all, hand movements were included. You see, in your previous class, I had already discussed about hand movement, that is the evolution of hand. Okay, then next come vocal communication like singing or humming were used before the spoken language. So you can relate, na? How monkey used to cry, or how chimpanzee used to make sound, ah, like that, right? Okay, then next come, that is the human speech was probably started with call like the ones which have been observed among primates. In initial stage, humans have been possessed few speech sounds. Gradually, these sounds may have developed into language. Yeah, first of all, they started calling names, okay, or they used to make some special sounds for calling one another's names, okay, like suppose my name is Ananya and your name is Neha and another name is Zahir. So suppose if you want to call me, you will make some different sound like ah, okay, and if I want to call Sneha, then we will make some different oh, like that, okay, or Zahir e. So you are getting my point, I think. Okay, so when they used to call someone, they used to make some special sounds, okay, before the language was developed. Okay, now see, it is believed that the brain of Homo habilis had certain features. You know what is Homo habilis? That was the tool maker. Okay, has certain features which made it possible for them to speak. The development probably was started about as early as 2 million years ago, except the changes in brain. Okay, the spoken language was closely associated with the art because both are the means to express the ideas. Okay, let me tell you one thing. Early humans used to live in the caves, and if you Google it, you see inside the caves they used to draw many pictures. Okay, if you see, then why they used to draw the pictures? Just because they used to means there was this first picture was their first way of communication. That means the picture first they used to make a picture of bull, or they used to picture of suppose any other wild animals. Okay, that means they want to convey the message that the next day means the next attempt that they will going to kill that animal just because to feed themselves. Okay, that's the main motto. So why they used to draw the pictures? Just because they want to give a message that yes, we will going to hunt that animals next time. So from the art, their way of communication started, and later on, the I have explained you how they first they making some special sounds by calling their names, and later and later and later, then our language had evolved. Okay, so if you see, please you Google it and you see inside the caves. Here you will find a picture that used to draw means what the scene they used to draw in the caves. Okay, and sometimes they used to draw the wild animals. I told you why they used to draw the wild animals picture in the inside the caves. That just because they want to convey the message that yes, we will going to kill this animals next time. Okay, क्योंकि हर समय तो एक जैसा खाना किसी को पसंद नहीं है ना, सब तो वैरायटी चाहते हैं खाने में, तो इसीलिए वो लोग वो पेंट करते हैं, क्योंकि वो समझाना चाहते हैं कि ठीक है हम लोग नेक्स्ट टाइम इस वाले एनिमल्स को हम लोग
मारने वाले हैं और हम खाने वाले हैं, ठीक है। तो वहाँ से उन लोगों का स्टार्ट हुआ है, ओके, ठीक है। ये मतलब बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को समझाया कि किस तरह से उन लोगों का लैंग्वेज इवॉल्व है। अभी आप लोग अगर बुक से पढ़ोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं इतना डिटेल से समझाया नहीं, सिर्फ वही है। तो बेसिकली ये 2 मिलियन ईयर्स एगो से ये आया है, ठीक है। वहाँ से धीरे धीरे इवॉल्व होना शुरू हुआ था। तो पहले वो लोग कैसा था, पहले उन लोगों का पहला आपको याद रखना, कुछ सिंपल पॉइंट्स मैं पहले बोलना चाहती हूँ कि हिस्ट्री जो है ये देखो डिटेल स्टडी तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग उसका अगर फैक्ट्स याद रख लोगे तो आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो फर्स्ट कैसे उन लोगों का लैंग्वेज तो फर्स्ट आया था कि वो लोग पहले क्या करते थे, वो लोग पहले केव में एक कुछ पिक्चर ड्राइंग करते थे, जिससे कि वो लोग समझा देते कि हम लोग नेक्स्ट टाइम उस वाइल्ड एनिमल्स को मारने वाले। तो वहाँ से उन लोग कम्युनिकेशन स्किल स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट टाइम धीरे धीरे इवोल्यूशन के साथ साथ उन लोगों ने क्या किया, एक दूसरे का नाम पुकारना शुरू। ऐसा नाम नहीं, मैंने से बोला कोई स्पेशल साउंड वो लोग निकालते। तो इसी तरह से धीरे धीरे करते करते बातचीत मतलब कि ये जो लैंग्वेज है वो इवॉल्व होना शुरू हुआ, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से। अब देखो और एक पॉइंट्स में आज समझा लेती हूँ कि देखो हाउ हाउ अर्ली ह्यूमन्स यूज्ड टू मेक stone tools, okay। So see, the earliest evidence for the making of use of stone tools are found in the sites of Kenya and Ethiopia. You have to remember these two sites. Where it is found, one is Kenya and another is Ethiopia. Probably the Australopithecus were the earliest stone makers, okay। I told you about Australopithecus, they are the apes, and you know what are apes, that is the big monkeys. So actually tools were of great importance in human life. Humans had some physical features which helped them in making tools, and these features were not known among apes. First features were skilled use of hands, except they had greater memory and complex organizational skill which were absent among apes, okay। So see how they started making tools. First of all, after the evolution of hand, they started, that is उन लोगों के हाथ में क्या हुआ, ग्रिप बनना शुरू हुआ। मुट्ठी बना सकते तो इजीली वो लोग कैच कर सकते थे कुछ भी। जब मतलब पेलोलिथिक फेस में भी मतलब स्टोन टूल्स बना था, लेकिन उन लोगों का क्या था, थंब फिंगर का कोई फंक्शन नहीं था। इवोल्यूशन के साथ साथ थंब फिंगर का फंक्शन भी शुरू होना स्टार्ट हुआ था, जिसे हम लोग बोलते हैं अनअपोजेबल थंब, ठीक है। तो जैसे उन लोग का हाथ के साथ इवोल्यूशन हुआ तो वो लोग इसी तरह से स्टोन का टूल्स बना देते। वो लोग क्यों स्टोन का टूल्स बना देते थे, क्योंकि जस्ट टू किल वाइल्ड एनिमल्स टू फीड देमसेल्व्स, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला था कि जैसे पेलोलिथिक टाइम पे भी बहुत बड़ा था साइज़ में, जैसे अर्ली ह्यूमंस थे बहुत बड़े साइज़ में थे। इवोल्यूशन के साथ साथ ही छोटा होना शुरू हुआ, तो पहले बहुत बड़े साइज़ में थे। तो उसी हिसाब से जो वाइल्ड एनिमल्स थे वो भी बहुत शक्तिशाली और बहुत बड़े साइज़ में थे। तो क्या हुआ था उस टाइम पे, तो एक ही सिर्फ मतलब जो मिलता था वो स्टोन सा, तो स्टोन से वो लोग वेपन्स बनाने थे, और वो इस वेपन से क्या करते थे, वो वाइल्ड एनिमल्स के सिर पे जाके बहुत ज़ोर से मारते थे। तो वहाँ पे वो मर जाता था, बाद में उसको वो लोग खा लेते थे। तो धीरे धीरे जब फायर इन्वेंशन शुरू हुआ, बाद में वो लोग उसको जला के खाते थे, ठीक है। तो वही इवोल्यूशन के साथ साथ मतलब मैंने जैसे पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक पीरियड तक भी स्टोन टूल्स था, ठीक है। लेकिन फेज़ वाइज ये छोटा होना शुरू हुआ है, फेज़ वाइज के साथ। मैं नेक्स्ट दिन अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो मैं आप लोगों को समझाऊंगी इसके बारे में, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है स्टोन टूल के बारे में, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है जानने में। मैं वही समझाना चाहिए, फेज़ वाइज ये छोटा होना शुरू हुआ। जैसे पेलियोलिथिक पीरियड में था तो वो कैसा था, वो लोग कैसे बनाते थे, उसको बहुत पॉइंटेड बनाते थे, बहुत पॉइंटेड था, बहुत शार्प था, और उनका जो एजेस था मतलब वो भी बहुत शार्प था, ठीक है, और बड़ा भी था और बहुत हेवी भी था साइज़ में। मेसोलिथिक पीरियड पे पहले था पेलियोलिथिक, दैट इज़ ओल्ड स्टोन एज, मेसोलिथिक दैट इज़ मिडिल स्टोन एज, नियोलिथिक दैट इज़ न्यू स्टोन एज। तो मिडिल स्टोन एज में क्या हुआ था, वो थोड़ा छोटा हो गया और जो पॉइंटेड था वो थोड़ा ब्लंट हो गया, लेकिन एजेस शार्प था। जब न्यूलिथिक पीरियड पे आया तो क्या था, और थोड़ा छोटा हो गया, और जो पॉइंटेड पोर्शन था वो ब्लंट हो गया और एजेस थोड़ा सा
मतलब पॉलिश हो गया था, शार्प था लेकिन थोड़ा सा पॉलिश था, ठीक है, और हैवी था, जो भी था वो हैवी था। हाँ, तो मैं आप लोगों से बेसिक जो टूल्स आप लोगों को समझा, एक था उन लोगों का हैंडिक्स और एक था उन लोगों का चॉपर। उनका बहुत ज़्यादा टूल्स था, मैं सिर्फ बेसिक टूल्स आप लोगों को बता रही हूँ। एक था हैंडिक्स, हम लोग का अब जैसे हैंडिक्स यूज़ करते वो वैसा नहीं है, उन लोगों का पुराना स्टाइल ट्रेंगल साइज़ का था, उन लोगों का पूरा ट्रेंगल साइज़ का था। और ट्रेंगल का जैसे हम लोग का पॉइंट होता है ना, जैसे वो पॉइंटेड पोर्शन से वो लोग क्या करते थे, उस पॉइंटेड पोर्शन से वो लोग बार करते थे। और चॉपर कैसे, चॉपर थोड़ा सर्कल टाइप का होता है और या समझ फ्लैट टाइप का होता है, और मैं इसको आपको पिक्चर दे दूँगी, आपको समझ में आ जाएगा कैसा है, मतलब बोल रही हूँ वो सर्कल टाइप का होता है। उससे वो लोग क्या करते थे, आपको चॉपर को याद है, सबके घर पे चॉपर है। तो एक्चुअली बेसिकली उस टाइम पे चॉपर किस वजह से यूज़ करते थे, टू रिमूव द स्किन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है, उस वजह से। तो आप लोगों को समझ में आ गया। अभी आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। और नेक्स्ट दिन किसी को भी इसके बारे में जानना हो, टूल्स के बारे में, तो मैं समझा दूँगी कि आप लोग ये बुक पे नहीं है, तभी आप लोगों को कोई जानने में इंटरेस्ट हो तो मैं समझा दूँगी, ठीक है।